Good evening, everyone. I Smriti welcome you all on behalf of the entire CIMB family. With immense pleasure and honor, CIMB extends a warm welcome to the distinguished chief guest of today's session, retired IAS Vijay Prakash sir, who is also the chairman cum CEO at AIC Bihar Vidyapith, and Mr. Sandeep Kumar sir, Dean, Rashtriya School of Public Leadership, Rishi University, for today's IIC celebration activity session celebrating World Creativity and Innovation Day. I welcome Professor Dr. Rana Singh sir, Director Swami, and all the esteemed individuals gracing this magnificent hall today. I am delighted to have each one of you here with us. Before we start, I take this opportunity to brief our honorable guest of the day about our institution. Starting with Chandragupta Institute of Management, Patna, which is an esteemed institute established in 2008 by Sri Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar, with government support. CIMB is an autonomous institute like IMS. CIMB ranked top 125 in NIRF 2022, 31st among government B schools and 6th in the East Zone, also rated AAA plus by Career 360. Now about BHub. BHub is a premier co-working space in Patna for startups that are recognized by the Department of Industries, Government of Bihar, occupying around 17,000 square feet area in Model Row complex. BHub enables startups to access space, education, and resources needed for growth. Now, brief on IEC activity. Today's activity is part of the institution's Innovation Council program initiated by the Ministry of Education in collaboration with AICPE. It aims to foster innovation and entrepreneurship in higher educational institutions by engaging faculty, students, and staff in various activities, promoting a culture of innovation and a startup ecosystem. Now, it is my honor to invite Professor Dr. Rana Singh sir to grace us with his presence and deliver welcome address. Good evening, everyone. Our Honorable Chief Guest, Sri Vijay Prakash sir, Honorable Chairman cum CEO at AIC Bihar Vidyapith, Mr. Sandeep Kumar, Dean, Rashtriya School of Public Leadership, Rishi University, Professor Dr. Keshwendra Chaudhary, Principal and Professor, Government Engineering College, Shivhar, who's available with us online, Anjani Kumar, Mentor, CIMB members from the startup fraternity, and all others, the students from GEC Shivhar, all other members participating online and offline. It's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to extend a very warm welcome to our chief guest with a big round of applause. Vijay Prakash sir has been one of the luminaries as a bureaucrat and has been one of the frontrunners in the state of Bihar in general and Patna in particular, and has been showing the pathway to the startup fraternity and has been one of the 10 initial AIC which were approved by Niti Aayog, Government of India under the dynamic leadership of the then Vice Chairman, Professor Arvind Panagaria sir. And I had the pleasure and privilege of working with him in the founding period. We are, in fact, very thankful and grateful to you, sir, for your gracious presence and your consistent patronage to CIMB, CIMB-BIF, and all members of the startup fraternity, and also the startup founders and stakeholders of CIMB-BIF and BHub together. It's also my absolute pleasure to welcome Mr. Sanjeev Kumar, Dean, Rashtriya School of Public Leadership, Rishi University, who has been doing a pioneering work in the domain of management and allied areas with a big round of applause. I also take this opportunity to extend Professor Dr. Keshwendra Chaudhary, Principal and Professor GEC Shivhar, CIMB and CIMB-BIF has been working very closely with this engineering college, which has been doing very well under his leadership, and we are committed towards strengthening our relationship and also to foster a culture of
Startup Innovation, Entrepreneurship, Incubation, Commercialization Act, T.C. Shiver. We also extend a warm welcome to him. Now we are able to start online. Last but not the least, I also take this opportunity to welcome each one of you present in this conference hall today, who have been always here to listen to the experts, their views, their ideas, their thoughts, and the strategic roadmap and the milestones to be achieved in globally competitive economy, and how we should reorient our strategies, particularly with reference to talking about the global competitiveness. And we take this opportunity to welcome all of you to celebrate the World Creativity and Innovation Day. We have all gathered here to celebrate the World Creativity and Innovation Day. And let me share with you some of the best practices, how internationally creativity and innovation is being driven, imbibed, thrust upon, and incorporated in academic institutions, corporates, government, and the social organizations as well. I'll give you an example from United Arab Emirates, wherein way back some 10 years back, we had a great meeting with all the sheikhs coming together, all the 7 sheikhs coming together, and we thought, let's have more and more emphasis on creativity and innovation. And the first decree which was passed there, that all the higher educational institutions in UAE will have a course at undergraduate level. Every program will have a course on creativity and innovation. And that's how it became a law of the land. One signature and the decree was passed. And in no time, it became a law of the land that every undergraduate program of UAE will have. Like other developed economies of the world. And you'll be delighted, in 2018, I was serving as Vice Chancellor of a university. And we had a conference of all the Vice Chancellors along with the HRD Minister, the then HRD Minister and UGC Chairperson and Higher Education Secretary. And you'll be delighted to know when I shared this best practice along with all the Vice Chancellors of the economy, along with HRD Minister. From the dais itself, Honorable HRD Minister said, let us incorporate it. And then within no time, within a week, UGC chairman, he wrote a letter to all the vice chancellors to incorporate a course on innovation and creativity. And gradually, we saw the Ministry of Education, it incorporated MIC, which has now started mandating all the higher educational institutions should have Institute Innovation Council. And all these institutions are now mandated to focus on conducting series of programs on innovation, so that more and more students, more and more faculty members are oriented, energized, pushed, and motivated towards focusing on creativity and innovation. And as a culmination, last 3 years have been monumental for a growing economy like India. Last 3 years, how we have moved, let me help you understand. We were at 86th rank in the world. We moved to 46th rank. Now, as per the 2023 rankings given by WIPO, World Intellectual Property Organization, India ranks 40th in the world on the basis of innovation. Whereas small economies like Switzerland and other small economies, they are ranking in top 10. So ultimately, creativity and innovation is not directly proportional to population. Had it been directly proportional to population, India would have been ranked 1. With the largest population of the world, with 144 crore population, we are still at 40th rank. However, the mission is going on, and in this mission, the intent is to help everyone be sensitive to the responsibility of focusing on innovation and creativity. And let me share with you one best practice which we did at CIMP. Well, I'm sure all of you have heard about digital rupee. Yes or no? Yes. Digital rupee has become now a part and parcel of life. Not many people have started using it, but gradually everyone will start using it. And I had the pleasure to work with some of my engineering colleagues, and we prepared a prototype which is to be used by the blind people. This is a small device, very small device, as good as the size of Milk Bickie's biscuit.
And this device will enable the blind people to use digital currency. And we have submitted our patents to be with the competent authority to get the patent. So now this mission of innovation and creativity and filing of IPR has started picking up, and India has become one of the front runners globally. And in the times to come, with a growing and burgeoning population, we are sooner or later we are going to become rank one. How sooner is just a matter of question. And with these words, I once again extend a very warm welcome to our honorable chief guest. I thought let me set the tone and tenor of the discussion today, because all of you, the startup fraternity, you know, a new innovative product. Think of life without Ola and life after Ola. All of you, many of us, we have used Ola. Now it takes minutes to get a taxi of our choice, taste, and preference, and we can go anywhere. Even at midnight, 3 o'clock, if we have come by boarding a flight, we reach home at 2:30 at night. We can still order food by Zomato. So life has become a lot easier and a lot complex thanks to creativity and innovation. Complexities are also increasing. Yes or no? Yes. With more and more innovation, complexities are also Increased. increasing, because more and more digital currency being used, more and more digital frauds are happening. So every innovation is a challenge and an opportunity together. The option is with us, how strong we are to leverage the opportunity and to restrain ourselves from the repercussions or the negative impact. So it's time for us to take a decision, take a commitment that with the changing times, changing technologies, changing business environment, legal environment, political environment, we as startup stakeholders, we would like to leverage technology and innovation, and we shall unlock the human potential. Now, when we say unlocking human potential, it is very simple. We have to give freedom to people. We have to empower people. We have to give them the latest resources. We have to incentivize their creativity and innovation. And we have to give them the freedom to commit mistakes. I mean, not to just commit mistakes, but to be focused at research and development, be research-centric, research-oriented, to conduct empirical research, and to come out with new products, new services, new innovations, so that we as a country, as an organization, we should be the drivers of the change and set new benchmarks of excellence within the country and outside the country, and take the name and fame of our country to newer heights, and to ensure that we leave our footprints on the sands of time for the generations to come to feel proud about our innovations. Thank you very much. Thank you, sir, for your Thank you, sir, for your gracious presence and insightful address. Well, without further delay, let's hear from retired IS Vijay Prakash, sir, as he enlighten us with his knowledge and experience. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Rana Saab, Sanjeev ji, and all those of the dignitaries who are present in this hall. मैं समझता हूँ सभी हिंदी समझते हैं। मैं हिंदी में बात कि मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आज आप सबों को कि आप लोग सभी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से जुड़े हुए हैं, और हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मना रहे हैं। ये पहले नहीं मनाया जाता था, आज से 4-5 साल पहले भी पूछते थे, शायद जब यूएन ने मनाना शुरू किया तो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन 15-20 साल से लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये 21st सेंचुरी में ही क्यों आया, ये समझता हूँ शायद ये हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि पहले तो नहीं होता था, और ये एक नई शुरुआत कर दी गई है क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाने की। मैं समझता हूँ शायद इस पर मैं कुछ विचार करूंगा, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई है अभी अचानक। लेकिन कुछ बातें मैं चाहता हूं कि कुछ इतिहास से भी हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को किस तरह से समाज में प्रमोट किया गया, और अभी आखिर क्या इतनी अर्जेंसी आ गई है इसको अलग से प्रमोट करने के लिए। अलग से मैं करीब
क्रिएटिविटी वर्ड को यूज कर रहा हूँ इन पब्लिक स्पेस फॉर लास्ट 30 ईयर्स। जब से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और जब से मैंने कुछ किताबें लिखी, तब से मैं क्रिएटिविटी को प्रमोट करने की बात कर रहा था। लेकिन लोग उस समय में कोई इसको पता नहीं कहते थे कि पता क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ समझते थे लोग कि शायद ये सिलाई कढ़ाई, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, ये क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है। तो मुझे लगता है शायद क्रिएटिविटी के का जो शब्द का अर्थ है, डेफिनेशन है, वो भी सिंक इन नहीं किया। अभी भी मुझे लगता है शायद ये सिंक इन नहीं किया। मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। देखिएगा, हम लोग एक प्रश्न से मैं शुरू करूंगा और भारत के इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सभी इवेंट, आज छोड़ दिए बच्चों के, ये हम लोग तो सभी इवेंट में हम लोग दीप जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कभी हमने पता नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं अस्तो मां सब गम्य तमसो जो थे गम्य, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन मैं समझता हूँ शायद आज आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन के एंगल से देखिए तो अग्नि ही हमारा सबसे पहला आविष्कार था जिसने पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। और आग से ही पहला रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। औद्योगिक रिवॉल्यूशन की अगर बात कीजिएगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है आग से। इसलिए लोगों ने क्या किया कि सभी चीज में आग को लगाना शुरू कर। आग, कोई इवेंट ऐसा नहीं था जिसमें कि हम आग से जुड़ी हुई चीजें नहीं करते थे। जितना यज्ञ वगैरह जो होता था सब में आग ही होता था। आखिर क्यों होता था वो भी मैं समझने की जरूरत है। और बिहार से ये जुड़ा हुआ इसलिए भी है कि ये जो पूरा मिथिला है, मिथिला के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी आई है। कहानी क्या कैसे आई है? तो एक कहते हैं कि कुछ लोग, एक विदेश माधव थे नाम के ऋषि थे, और उनके साथ कुछ लोग और आए जिसमें एक वैश्व वानर थे। और वो लोग पश्चिम से आए, और जो गंडक नदी है उसको सदानीरा नदी कहते हैं, उसके पूर्व में पहले कोई नहीं आया था, ईस्ट में कोई नहीं आया था, वेस्ट में लोग रहते थे, वेस्ट में लोग गए थे। तो वो लोग उधर से आग से जलाते हुए आए थे। और कहानी यही है, शपथ कानून पढ़ लीजिएगा कहानी। ये कहानी में से बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि ये आग ने किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। तो ये उसमें से लिखा हुआ है ये कि जो ये थे मिस्टर वैश्वानर जो थे ऋषि, उन्होंने मुंह में आग लेकर के वो आए थे। उस समय में वैसे भी अभी एक बात समझिए कि हम लोग को अभी जितना आसानी से लगता है कि आग हो जाएगा, हमारे इसमें ही हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को आग बगल के घर से हम लोग गोईठा में आग मांग कर लाते थे। आग घर में ये हो जाता था। और घर में भी होता था ट्रे में गोईठा, एक्चुअली यहाँ पॉपुलर ये था, गोईठा पर रख करके लोग ले आए तो गोईठा भी, और अगर ट्रे मिल जाए तो शायद और सोने में सुहाग। मैंने आग भी हम लोग मांग के लाते थे। हम लोग यहाँ दिया सलाई वगैरह तो बात की चीज है, ये भी नई चीज है। ये आग को जला, यहाँ पर है एक जगह है यहाँ इसमें देवकुंड यहाँ पर औरंगाबाद में, आराम में हैप्पी गो, इधर हैप्पी गो। तो वहाँ देवकुंड में देखिएगा एक वहाँ ये है अग्नि, ये बना हुआ है। वो कहते हैं कि जिस समय वो चरणपरास वगैरह बना था उस समय से आज तक उसको जलाते आए हैं। आग को प्रिजर्व करना, आग को डिसेमिनेट करना, इस टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करना, यह एक हमारा, इसको लोग अध्यात्म से अलग से जोड़ दें, पूजन पद्धतियों से जोड़ दें, वो अलग बात है, वही हमारा मेथड था डिसेमिनेशन का। लेकिन मूलतः यह इसलिए किया गया ताकि हम एक एनर्जी के सोर्स को सब जगह पहुंचा सके। इसलिए पहला रिवॉल्यूशन। दूसरा रिवॉल्यूशन या इसी के साथ जुड़ा हुआ था जो कि आया आपको इससे व्हील और आग को अगर जोड़ दीजिएगा तो इसमें मेजर परिवर्तन को का जन्म दिया। जो और जिस पीरियड में ये आया, इसका कारण, ये बात समझिए, मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। ये एक स्टडी किया गया है अमेरिका में ही से ही ओरिजिनेट होता है ये सब। जेपी मॉर्गन ने एक स्टडी किया जिसमें स्टडी किया वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का
डिफरेंट कंट्रीज का, और 1 ईस्वी से लेकर के अभी तक का लोगों ने स्टडी किया है, 1 AD से, 1 AD से, और वो उन्होंने पाया कि ये जो 1 AD से करीब करीब 1700 AD तक, 18th सेंचुरी के बिगनिंग तक, तो आपको भारत का कंट्रीब्यूशन 30 से 40% तक रहा। ये कैसे रहा था? ये इसी के बदौलत रहा था। ये आग जो आपने अभी देखा कि आग को हमने घर घर पहुंचाया, व्हील की टेक्नोलॉजी, व्हील की टेक्नोलॉजी नहीं लाए हम लोग। आप देखिएगा एक तरफ से जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी, वो उसमें अनंत चीजें हम लोगों ने बनाई हैं और हमारे सिस्टम ने बनाई है। आज जब हम लोग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करेंगे, हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर हमारे पूर्वजों ने क्या आखिर तरीका अपनाया था। और एक तरीके की ओर फिर मैं आपका ध्यान अभी आकृष्ट करूंगा कि किसी भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सस्टेन करने के लिए जो सबसे बड़ा मैन पावर होता है, सबसे बड़ी चीज होती है आदमी। अपना क्रिएटिव आदमी होता है, आदमी ही क्रिएटिव होता है। इसलिए आदमी को क्रिएटिव बनाना, अभी अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल बहुत अच्छा नाम दिया है आप लोगों ने। तो ये क्रिएटिविटी एक मेंटल एट्रीब्यूट है। इसको डेवलप करने के लिए आखिर यहां सिस्टम क्या बनाया गया? और मैं आपको कहूंगा उल्टी दिशा में जब थोड़ा सा सोचिए। आज मैं थोड़ा अलग ढंग से बात करूंगा। मैं सरकारी बात नहीं करता हूं या सरकारी चीजें नहीं कहूंगा, ट्रेडिशनल चीजें नहीं कहूंगा। तो ध्यान से समझिए, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज चीज है कि भारत में सबसे अधिक खराब है कास्ट सिस्टम। हम लोग यही कहते हैं, भारत विदेश में जाइएगा तो भारत में सबसे अधिक खराब है कास्ट सिस्टम, को जब तक नहीं बदलिएगा तब तक नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझको लगता है कि अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सस्टेन किया है किसी चीज ने, तो उसने कास्ट सिस्टम ने सस्टेन किया। ये बात समझिए और इसको उल्टा दृष्टि से देखिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, मुझे कोई एक कास्ट बता दीजिए जिसने इनोवेट ना किया। सभी ने एक कोई ना कोई एक इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी वो उन्होंने डेवलप किया है, उसको जन्म दिया है। पासी जाति ने हजारों पेड़ में से, लाखों पेड़ में से वैरायटी ऑफ एक पेड़ निकाला जिसको कि जिसका सैप आदमी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो सकता है। कहाँ पीपल का तो हम लोग सैप नहीं पीते हैं। और जानवर एक पेड़ निकालना, उसको भी उतना ऊपर जाके चढ़ना और ये पता लगाना कि रात में हम लवनी लगाएंगे और फिर उसमें क्या डालेंगे और फिर उसको कैसे लाएंगे, ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? ये बात समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा इनोवेटिव क्या हो सकता था? चरमकार। मुझे आज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हजारों साल से करता था। उसको तो हमको माला पहनाना चाहिए था। जिस चीज को वेस्ट कहते हैं आप, और आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो चमड़ा का सामान नहीं पहनता हो। तो हमारा ये मैं समझता हूं शायद इस बात, मुझको कोई जाति बता दी, कोई जाति कोई ग्रुप बता दीजिए जिसने इनोवेट न किया। कोई आदमी बाल्टी वाला है तो कोई आदमी डब्बा वाला है तो कोई जो भी है ताला वाला है, जो भी है, तो कोई दुनिया है तो कोई जाति ही नहीं है जिसके पास कोई अधिक एक इस तरह का इनोवेशन ना हो। मैं समझता हूं शायद इस पर बहुत गंभीर रूप से चर्चा करने, इसी ने हमको हमारे जीडीपी को इतना ऊपर बना के रखा। हमारे पास मार्केटिंग अगर सीखना हो तो अग्रवाल और बढ़िया से सीखिए भाई, दुनिया में उससे ज्यादा बढ़िया तो नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिस आपका ध्यान शायद न जाएगा। आपने कभी किसी बनिया का मैथमेटिक्स देखा? उसको कभी गलती करते हुए देखा है जोड़ घटाव में? आखिर वो उनका मैथमेटिक्स क्यों नहीं, हम पता नहीं हम लोगों ने क्यों नहीं देखा उसको। जब ध्यान से देखिएगा, दे हैव अ सेपरेट नैक ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स। ध्यान देखिएगा, दाहिने साइड में वो टिक करते चलता है। तो देखिए क्यों करता है वो, कभी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया उसको। ये उनका ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है उनका। वो देखिएगा वो टेंस के लिए टिक करते हैं, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड टिक करते हैं और फिर उसको जोड़ लेते हैं। उनको 10 से ज्यादा का ये जोड़ तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैं उसमें डाइग्रेस नहीं करूंगा। सभी ने कुछ मैथमेटिक्स डेवलप कर रखा है, कुछ साइंस डेवलप कर रखा है। किसी ने लोहार में देखिएगा कि पूरा ये ब्लास्ट फर्नेस नहीं कहिए, लेकिन एक फर्नेस
डेवलप कर रखा है, कुम्हार ने अपनी चीज कर रखी है। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन हमारे ब्लड में है, और इसी पर हम लोगों ने आज तक हम लोग समझिए वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते आए हैं। हम लोग लीडर रहे हैं, हम लोग जो हमारा ये लीडरशिप रहा है इकोनॉमी में, वो इसी के बदौलत रहा है। हुआ कहाँ है, गलती कहाँ हुई है, कैसे 1700 के बाद से, कहानी में फिर आगे बढ़ा हूं, उसके बाद से हमारा ये घटने लगा। हम लोग का लो 2% तक चला गया था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हुआ क्यों? एक तो ये था कि हम लोग विदेशी शासन में थे, लेकिन दूसरा उससे भी बड़ी बात थी कि हमने मिस कर दिया। जब देखिए आग का कंट्रोल हमने किया, लेकिन भाप का जब कंट्रोल हुआ, जब स्टीम इंजन आया, तो हम उसमें पिछड़ गए। हमारा तब तक, जब तक आग का के माध्यम से छोटा छोटा काम होता था, तब तक घर घर काम होता था। यहाँ देख लीजिएगा, कोई जाति ऐसी नहीं है, किसी हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं थी। जब तक जाति के आधारित हमारा पेशा था, तब तक नहीं थी। अब उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, उसको कैसे डेवलप किया जाए उस पर बात अलग से कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सिर्फ समझिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारा ये सभी चीजें मतलब एक सामाजिक ताना बाना से बना हुआ था और डेवलप कर रहा था। लेकिन हम लोग जो नए टेक्निक्स आए, जैसे हम लोग उसके बाद जो रिवॉल्यूशन आया वो आया स्टीम इंजन से, उसमें हम चढ़ गए। उसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन आया, जब बिजली आई, दूसरा सोर्स आया, ये सब सेंट्रलाइज प्रोडक्शन को ज्यादा सेंट्रलाइज करता चला गया, उस समय फिर हम पिछड़ गए। तीसरा रिवॉल्यूशन आया जबकि आपका आईटी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आया, ये जो लास्ट सेंचुरी में, फिर हम पिछड़ गए। और अब आया है कि जब आप रोबोटिक्स, सेंसर नेटवर्क, 3D प्रिंटिंग, जिसको आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और जो नाम जो दे दीजिए, ये जो आ रहा है, इसमें भी हम पिछड़ गए। अब है कि अगर हमको ये अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल करना है तो हमको क्या करना, ये आज सोचने की जरूरत है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सब लोग, आप लोग हैं, देखिए एक बात समझने की जरूरत है और इसको बहुत सीरियसली समझने की जरूरत है। क्रिएटिविटी डेवलप होता है व्यक्ति में, क्रिएटिविटी व्यक्ति की चीज है। इनोवेशन एक प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोसेस का प्रोडक्ट हो या जिस प्रकार का प्रोडक्ट हो, वो मार्केट से जुड़ता है, वो लोगों से जुड़ता है। क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए हमको स्कूल सिस्टम में इंटरवेन करने की जरूरत है, और इसी के लिए मैं प्रयास करता रहा हूं। और हम लोगों ने क्रिएटिव लर्निंग एक सिस्टम डिजाइन किया, जिसमें हम लोग बेसिकली क्रिएटिविटी कैसे डेवलप किया जाए स्कूल में, इस पर काम करते हैं। यहाँ पर एक स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग भी हम लोग 25 साल से करीब चला रहे हैं, जिसमें इस पर काम करते हैं कि हम लोग कैसे करा पाए, मतलब। और इसको जब ये कर रहे थे तो हम लोगों को एक बात ध्यान में आई, जो मैं फिर आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम लोगों ने ये महसूस किया कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास है और भारत का जो सर्विस क्लास है, अनफॉर्चुनेटली पहली बार वो स्कूल आ रहा है। किसी भी भाथी वाले को, किसी भी लोहार को स्कूल आने की जरूरत नहीं थी, तो उसका घर ही स्कूल था। जिसको सीखना था उसे घर जाते थे। कुम्हार स्कूल नहीं जाता था, लोग जाते थे जिसको कुम्हारी सीखना है, तो उसका स्कूल तो उसके साथ चलता था, उसके घर में चलता था। हमारा फैमिली बिजनेस था, हमारा फैमिली स्कूल था, हमारा फैमिली प्रोडक्शन सिस्टम था, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था। हमने क्या किया है, पहली बार हम इतिहास में हम लोग स्कूल को समझिए यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं, लर्निंग का। अनफॉर्चुनेटली लर्निंग का यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस जो हमारे समाज में चल रहे थे प्रोडक्शन के, सर्विसेज के, उसको हम स्कूल में नहीं ला रहे। उनका लर्निंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट था और हमारा लर्निंग रिक्वायरमेंट एकदम डिफरेंट। इसीलिए आपको अभी बेरोजगारी नजर आ रही है, इसीलिए आपको वो जो इनोवेशन का जो इनपुट था वो आपको नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रयोग किया है, मैं इसलिए प्रयोग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग को मॉडर्न स्कूल बनाना है जो क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके, तो हम लोग को स्कूल में क्रिएटिविटी को और टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलर ज्यादा स्पेस देना होगा।
हम लोग साइंस पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाते। हम लोग आर्ट पढ़ाते हैं, क्राफ्ट नहीं पढ़ाते। और ये लोग सभी क्राफ्ट के मास्टर हैं, ये लोग सभी टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। सभी गांव का कोई आदमी नहीं होगा जो जुगाड़ नहीं करता हो। लेकिन जुगाड़ हमारे स्कूल में स्पेस नहीं पाता। जुगाड़ ही तो इनोवेशन है, जुगाड़ ही से इनोवेशन होता है। खाली जुगाड़ को आपको उसको एक फॉर्मलाइज कर देना है, एक स्ट्रक्चर देना है, प्रोडक्ट के शेप में दे देना है, उसको लोगों तक पहुंचा देना है। तो ये अगर हम लोग कर सकें तभी हम शायद जो जो हमारा क्रिएटिविटी का जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम सब लोगों को, वो हम लोग एक और बात बता दूं, एक रिसर्च फाइंडिंग की बताता हूँ कि गांव के लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं शहर के लोगों से, क्योंकि उनका उनका जीवन जुगाड़ ही पर चलता है। जुगाड़ क्रिएटिविटी का आधार है। तो अगर क्रिएटिविटी बढ़ाना है तो जुगाड़ को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जगह देना हो। और मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ, हम लोग 23 तारीख को यहाँ पर कर भी रहे हैं, एक एग्जीबिशन लगाते हैं इनोफेस्ट स्कूल में, इनोवेशन फेस्टिवल करते हैं, 23 तारीख को करेंगे। आप आइए और देखिए बच्चे कितना बढ़िया काम कर सकते हैं एक लैब में। अभी गवर्नमेंट ने जो टिंकरिंग लैब शुरू किया, वो टिंकरिंग लैब वहां भी चलता है और अद्भुत काम करते हैं बच्चे। ये तभी संभव है जबकि टेक्नोलॉजी को हम स्पेस दें स्कूल में। अभी तक का करिकुलम में हमारा स्पेस नहीं आया। आपने बहुत अच्छी बात कही थी अभी आनंद साहब कि हम लोग डिजाइन थिंकिंग को स्पेस दें या हम लोग आइडिएशन को जगह दें। हम लोग को बेसिकली डिजाइन थिंकिंग और आइडिएशन को क्लास 1 से पढ़ा, डिजाइन थिंकिंग को ही नहीं पढ़ाना है, हमको ज्यादा पढ़ाना है टेक्नोलॉजी को। और टेक्नोलॉजी से जो निकलेगा साइंस, वो साइंस शायद ज्यादा अस्थायी साइंस हो। इसलिए मैं क्लास 1 में देखता हूं कि बच्चे बिजली पर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जबकि वो बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो कहेगा ठंडा गर्म है, लेकिन ठंडा गर्म से वो सारा काम कर देगा जो कि ठंडा गर्म करता है। यही कॉमन टर्मिनोलॉजी। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी को, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन पोटेंशियल बढ़े, ह्यूमन पोटेंशियल को हम लोग फुल अनलॉकिंग करें, तो हमको टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट को, डिजाइन को, इसको हमको स्कूल लेवल से ही, हमको स्कूल लेवल पर बड़े पैमाने पर लाने की जरूरत है, उसको स्पेस दिलाने की जरूरत है। ये अभी भी एनसीईआरटी, अभी भी कोई गार्जियन ना सहमत होगा, गार्जियन हमारा नहीं सहमत होता, लेकिन अभी सहमत कराने की जरूरत है। क्योंकि वही बच्चे जो रोबोटिक्स, अभी मैं बच्चों के साथ रोबोटिक्स और सेंसर इंटरव्यू के साथ काम करता हूं, मैं देखता हूं बच्चे अद्भुत काम कर रहे हैं एंड दे विल बी द लीडर्स। अगर चाहते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें कम्युनिटी में बढ़े या देश में बढ़े, तो पहले स्कूल में बढ़ाने की जरूरत है। मेक इन स्कूल फर्स्ट होगा, तब मेक इन सोसाइटी होगा या नेशन होगा। तो हम लोग जो अभी जो सरकार का नारा था कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया शुड स्टार्ट फ्रॉम मेक इन स्कूल। ये जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब आपको गांधी जी जो कह रहे थे, मैं आज गांधी जी की बातों को नहीं ले आ रहा हूँ, लेकिन एक बात कह दे रहा हूँ। गांधी जी कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट हमको ये बनाना, स्वावलंबी गांव बनाना है, स्वावलंबी समाज बनाना है। वो भी तभी बनेगा जबकि टेक्नोलॉजी को हम लोग स्पेस देंगे। हमने साइंस को बहुत ज्यादा स्पेस, देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट यूजलेस है। लैब बंद कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। लैब के बदले टिंकरिंग लैब शुरू कर दीजिए। ये लैब्स हम पढ़ाते क्या है, कौन एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेट जो किसी ने किया था, और वही रिजल्ट जो किसी दूसरे ने किया था, वो आज भी हम कॉपी करके लिख देते हैं। हम लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी सिखाएं बच्चों, और इसका बाकायदा तरीका निकल सकता है। तो एक तो हमारा स्कूल रिफॉर्म हमारा एक बड़ा काम, लेकिन इनोवेशन अब दूसरा पार्ट है। मैंने क्रिएटिविटी को डेवलप करने में स्कूल रिफॉर्म का, स्कूल और कॉलेज, ऑब्वियसली कॉलेज भी उसी पैटर्न पर जाएगा, लेकिन इनोवेशन में एक दूसरी समस्या है। इनोवेशन जुड़ा हुआ है मार्केट से, और मार्केट से जुड़ा हुआ है तो हमको मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमको एक सिस्टम डिजाइन करना है जिससे हम लोग इनोवेशन को प्रमोट कर पाए। और इसके लिए जो नई आ रही है, मैं समझता हूं उधर ध्यान देने की जरूरत है, वो है इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आ रहे हैं, ये एक नया स्कूल है इनोवेशन का भी और उसके मार्केटिंग का भी। हम लोग इंटरप्राइज क्रिएशन तो हमारे दिमाग ही में नहीं था। हम लोग कभी इंटरप्राइज क्रिएशन की तो बात ही नहीं करते थे। इंटरप्राइज क्रिएशन, पहले एमए तक पढ़ाई करो, कहीं नौकरी ना मिले
तब जाके पान की दुकान चलाओ। एजित के पान का दुकान चलाना बड़ा आसान है, और उसके बाद वो पान का दुकान भी फेल करता है। ये तो मुझको ये समाज ही में समझ में नहीं आता है कि क्या हम सोच लेकर चल रहे हैं। क्यों नहीं इंटरप्राइज क्रिएशन हमारे लर्निंग सिस्टम का पार्ट बन सकता है। ये एक सोचने की जरूरत है, और ये बन सकता है तभी जबकि आप ये सारा रोल, टीचर का रोल बदलिए। टीचर अब मेंटर होना चाहिए। अंतर क्या है? टीचर और मेंटर में अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है जिसको हम लोगों को सभी को समझाने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है। सॉरी, मैं ज्यादा थोड़ा समय ले रहा हूँ, बता दीजिएगा, मुझको रोक दीजिएगा जब ज्यादा लेट हो रहा हो। लेकिन टीचर और सभी टीचर को अब, पहले हम लोग कहते थे फैसिलिटेटर बनिए, मैं अब कह रहा हूं कि मेंटर बनिए। मेंटर इसके लिए मेंटरिंग, क्योंकि मेंटरिंग इंडिविजुअल होती है, टीचिंग कलेक्टिव होती है। अब कलेक्टिव टीचिंग से बहुत काम नहीं चलने वाला है। जब इनोवेशन यूनिक होगा, इनोवेशन नहीं, तो ये मेंटरिंग, वन टू वन टीचिंग नॉर्मली नहीं होती। पहले गुरु करते थे वो लोग, जो वैदिक काल में करते थे लोग, वो उसमें भी वन टू वन नहीं होता था, उसमें भी ग्रुप ही रहता था। ग्रुप ही हमेशा रहता है, टीचिंग हमेशा ग्रुप ही का करते थे लोग, इसलिए आश्रम होता था। लेकिन ये मेंटरिंग हमेशा इंडिविजुअल होगा, सभी इंटरप्राइज के लिए अलग होगा, सभी इंटरप्राइज की जर्नी अलग होगी, सभी स्टार्टअप की जर्नी अलग होगी, सभी का प्रॉब्लम्स अलग है। इसलिए आप मेंटर हमको कैसे बड़े पैमाने पर इतना मेंटर तैयार किया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। और ये माइंडसेट है। किसी टीचर को कह दीजिए कि इसको कीजिए, टीचर तो भाषण देकर चला जाएगा, उसको बेचारा उसके बाद मर जाएगा स्टार्टअप। मतलब ये साइकोलॉजी का पता नहीं, आप लोग स्टार्टअप हैं सब लोग, तो आप लोग ये रियलाइज करते हुएगा कि टीचर से मेंटरिंग करना, और हो सकता है कि एक उद्यमी आए, वो शायद आपको बेहतर मेंटरिंग कर दे, क्योंकि वो उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है रियल लाइफ। तो मेंटरिंग, इसलिए मेंटरिंग किसी एक आदमी की बात भी नहीं है, किसी किताब की बात भी नहीं है। ये जीवन से के एक्सपीरियंस से निकलता है। हम लोग को मेंटर के रूप में बड़े पैमाने पर मेंटर बदलना, जो और एक और चीज जो कि हम लोगों ने अनुभव किया कि वो है कि एक इकोसिस्टम डेवलप करना। हम टीचिंग में इकोसिस्टम की बात नहीं करते थे, लेकिन जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो हम इकोसिस्टम में, एक उदाहरण दूंगा आपको जो कि बहुत ही रियल लाइफ उदाहरण है बिहार का ही। बिहार में आप लोग कहते हैं कि यहाँ तो डेवलप ही कुछ नहीं करता है, कुछ होता नहीं है। आज से 10 साल पहले वास्तव में, एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एक लेयर फार्मिंग होती है, अंडा का उत्पादन यहाँ नहीं होता, नहीं के बराबर था, मतलब 10 लाख अंडा पर डे का उत्पादन था ये 14 ईस्वी के बाद, नेग्लिजिबल था। लेकिन उस समय ही हम लोगों ने बिहार एग सफिशिएंसी कैंपेन एक शुरू किया। मैं उस समय में सरकार में था, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर था और प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग था, उस समय ही शुरू किया था। लेकिन उसके बाद मैं चलाया बिहार विद्यापीठ, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको आउटसाइड गवर्नमेंट ही शुरू किया। और लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ लेयर फार्मिंग बिहार में क्यों नहीं डेवलप कर रहा है, हम लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आखिर, अच्छा ये बता दूं, मैं सरकार की तरफ से करीब 700 करोड़ मैं ही डिपार्टमेंट को देता था, जो ये डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उसको 700 करोड़ रुपया दिया था टू डेवलप ये सेक्टर, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने देखा ये इसे नहीं करने का एक बड़ा कारण है कि जब आप वहां पर जो प्रोग्राम बनते हैं, मतलब ये रियल लाइफ केस स्टडी बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सरकार का प्रोग्राम बनता है मुर्गा मुर्गी वितरण कार्यक्रम, मतलब सभी को बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए तो 25-30 मुर्गियां दी जाती थी, और यह आइडिया रहता था कि उससे कुछ अंडा होगा, अंडा लोग बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे और इससे बात आगे बढ़ेगी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये इससे नहीं बढ़ेगा। तब हम लोगों ने कहा कि हम लोग कम से कम 5,000 या 10,000 मुर्गी का एक सेटअप एस्टैब्लिश करेंगे, लेयर फार्म स्टार्ट करेंगे। और आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं ताकि आप पास ऑन कर सकें दूसरे को, मैं 10,000 मुर्गी का अगर आप सेटअप करते हैं, एक थंब रूल हम लोगों ने बनाया, करीब 1 एकड़ आपको जमीन चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है 80 लाख रुपया 10,000 के लिए, और 80 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए आपका लगेगा, बाकी बैंक से लोन मिल जाए। और रिटर्न कितना है आप जान करके आश्चर्य हो जाए, रिटर्न है करीब
15,000 रुपया पर डे, मतलब 4.5 लाख रुपया पर मंथ। और इसका मतलब कि 4.5 लाख रुपया अगर आपको रिटर्न है तो आपको 1 सवा साल में आपका ये पूरा पैसा चुक जाता है। और यही सिंपल मैथमेटिक्स हमने लोगों के सामने में रखा कि अगर आपको करना है, और जो बच्चे नहीं कर रहे थे वो बच्चे भी इसमें आके करने लगे, ये इस कैंपेन में जुड़े, क्योंकि वो लोग 20 लाख रुपया आजकल जुगाड़ हो जाता है, अगर अकेले नहीं हुआ तो दो से हुआ। मैं तो कहता हूँ कम से कम शादी में ना खर्चा करो, इसी में 20 लाख रुपया दे दो तो तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी, रोजगारों करने की जरूरत नहीं है। तो इसका असर क्या पड़ा है तो मैं बताऊँ, ये इस अभियान का या इकोसिस्टम डेवलप करने का या लोगों को मोटिवेट करने का, पिछले 10 साल में 28% CAGR रहा है एग प्रोडक्शन का बिहार में। बिहार इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री। ये बात समझने की जरूरत है। अगर हम इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं फॉर अ टेक्नोलॉजी, फॉर अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, या बिहार के लिए जो इनोवेशन को नर्स करने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है उसको, जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजी को अभी हम लोग अगर चाहेंगे कि बहुत नई चीजें एकदम सडनली आ जाएं, वैसा नहीं आता है। लेकिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तो आ सकती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो प्रूवन है दूसरे जगह उसको लाएं, उसके लिए जो इकोसिस्टम है वो बनाएं, और उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग यहाँ के लोगों को डेवलप करें। तो जिस तरह से एग में सक्सेस मिला है उस तरह से आपको फिश में सक्सेस मिल सकता है, उसमें गोटरी में देखिए, गोटरी में हम लोग अभी तक हम लोग मतलब जो मॉडर्न गोटरी फार्म्स हैं वो हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी एक बकरा बकरी वितरण कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बकरा बकरी वितरण कार्यक्रम से कुछ ना होने वाला है, आपको इसको भी इंटरप्राइज के रूप में डेवलप करना। अगर दूध में भी करना है, बड़े पैमाने पर जाना है, दूध में भी आपको एक इंटरप्राइज के रूप में एक फार्मर से इंटरप्रेन्योर बनाना, यह काम होना चाहिए यहाँ, तब आप शायद इसको कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ में जो काम कर रहे हैं हम लोग, वो अभी मतलब नीति आयोग से सपोर्टेड जो है, उसमें हम लोग बेसिकली प्रयास यही कर रहे हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाए। अभी जैसे बहुत टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जो जितने भी फूड प्रोडक्ट बनते हैं, मैकेनाइज्ड फूड प्रोडक्ट, अभी फूड प्रोडक्ट्स या तो देखिए घर में लोग बना रहे हैं अचार, आप क्या मैकेनाइज क्या क्या चीज बना सकते हैं, मैकेनाइज चीजों को बनाइए और उसको हम बड़े पैमाने पर लोगों को के बीच में ले जा सकते हैं। हम लोग जैसे अब CNC राउटर है, आप पूरा का पूरा इसको जो बढ़ई का काम है वो सारा बदल दे सकते हैं, CNC राउटर पर ले जा सकते हैं, और देखिएगा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और फिर एक नए टेक्नोलॉजी से जब एक्सपोजर होता है तब फिर उसमें नया आइडिया जाता है और नया लोग करते हैं। अभी 3D प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर आएगा, हम लोग 3D प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। 3D प्रिंटिंग हम लोग घर घर ले जाएं, सभी स्कूल में, कॉलेजेस में, अगर क्रिएटिविटी बढ़ाना है और इनोवेशन बढ़ाना है, सब स्कूल कॉलेज में 3D प्रिंटर ले जाइए। अब अभी तक हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे, हम लोग इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं नहीं देखा हूँ कि 3D प्रिंटर अभी तक आ पाया। तो हम लोगों को, अगर आज हम लोग अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम लोग क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को एक तरफ तो स्कूल पर हम के काम करना है, दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेजेस, जैसा मैंने कहा कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लाना होगा, अदरवाइज सभी इंजीनियर्स बेरोजगार रह जाएंगे एंड दे विल बी मोर डेंजरस। वहां पर ही हम लोग को उनको, या तो आप जैसा अभी राणा साहब ने कहा कि उनको आप डिजाइन थिंकिंग से एक्सपोज कीजिए, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंटरप्राइज क्रिएशन से कीजिए। इंटरप्राइज क्रिएशन पता नहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, किताब पढ़ाते हैं, किताब नहीं, कैसे हम लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर वो कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वो इसका एक पेपर क्यों नहीं बन सकता है, वो ये मुझे बताइए। तो स्टार्टअप का एक प्रोजेक्ट आप करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप के बदले वो स्टार्टअप ट्राई करना चाहता है तो करने दीजिए ना। ये हम लोग को शायद ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन के एंगल से सभी की ऑडिट करने की जरूरत है, एकेडमिक ऑडिट करने की जरूरत है, और वो बदलने की। यहाँ पर हो सकता है कि किताब में कुछ ना मिले, उसको सीखना हो तो शायद इसके यहाँ जाके, एक लोहार के यहाँ जाके सीखना होगा भाती पर, या बढ़ई के यहाँ, इसको कुम्हार के यहाँ जाके सीखना होगा, सीखिए, लेकिन वो आपको कुछ करके देगा।
अगर मार्केटिंग सीखना है तो मुझे लगता है यहाँ के व्यापारी वर्ग से बढ़िया तो मार्केटिंग को नहीं सीख सकता। उनके यहाँ जरूर कुछ इंटर्नशिप करने के लिए देना चाहिए। जो लोग छोटा से क्रिएट करके, और मुझको लगता है, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मैं लेक्चर करता हूँ तो बहुत थियोरेटिकल बात सब न कहता हूँ, जीवन से जुड़ी हुई बातें कहता हूँ। कभी आपने देखा है किसी मारवाड़ी को कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मांगते हुए? जरूरत नहीं पड़ती। उनके यहाँ सिस्टम है, उनका वो जो मरता है तो अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ के जाता है। जिस रोज वहां क्रिमेशन से आएगा उसके बाद एक दुकान में खड़ा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर है तैयार, उसको कहाँ जरूरत पड़ती। और हमारे यहाँ बच्चे उसके बाद से अब दौड़ने लगते हैं, कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी दीजिए। ये बात समझने की जरूरत है। उन्होंने तो कहा बेरोजगारी का समस्या ना होती है, नहीं होती। तो हम लोगों को अगर बेरोजगारी को डील करना है, हम लोग को अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करना है, तो शायद ये जो मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम दिया, इस पर थोड़ी सोच भी बदलने की जरूरत है, सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है, और अपने सिस्टम को स्टडी करने की जरूरत है। और अभी एक बहुत अच्छा सरकार ने एनईपी में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, बहुत अच्छी। उसमें एक ये भी है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले लोग हैं उनको भी स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर बना रहे हैं आजकल। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है किसान को प्रोफेसर बनाना चाहिए, उससे बढ़िया कौन काम करे बताएगा। एक इसको जो लोहार है या जो ये चलाता है, कुम्हार है, एक से एक अद्भुत काम करता है। और मैं तो उनके साथ काम किया हूं, मैंने देखा है कि ऐसा जवाब देगा कि आप तो उसके बाद स्टन रह जाइएगा कि आप कुछ ये नहीं। तो ये जो ग्रुप है, इसको कैसे हम लर्निंग सिस्टम के साथ जोड़े, वो आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स पर्सन है। इसको हमें सोचना चाहिए कैसे हम करें। हम लोग हमेशा सोचने लगते हैं कि हमको 1 लाख रुपया मिलता है, इसको भी 1 लाख रुपया मिलने लगेगा। भी ये समस्या है हम लोग के साथ, एक साइकोलॉजिकल समस्या है कि ये इसको पैसा क्यों कैसे मिलेगा, इसको ये काम क्यों। लेक्चर आप भी पर लेक्चर बेसिस पर लीजिए, उसको भी पर लेक्चर बेसिस पर दीजिए। वैसे ही आदमी को बुलाइए जिसको जानकार हो, और जानकारी है उसी ने। अरे किसी आईआईटी में ताजमहल बनाया था, किसी आईआईटी में पढ़ने वाले लोगों ने ताजमहल बना था, रुड़की खुलने से पहले बना था। माइक्रोसॉफ्ट वाला भी स्कूल छोड़ा तभी बनाया, जितना बनाया है फेसबुक वाला भी छोड़ दिया था। सब छोड़ता है तब ये भी नहीं कहा जाए कि सब छोड़ता है तब बनाना। लेकिन छोड़ा, सब लोग छोड़ता है, नहीं उसमें स्पेस ही नहीं है सर। लेकिन एक बात इसमें, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर में स्कूल ड्रॉप आउट था, उसका जो सीईओ था वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, स्टीव बॉलमर। और एक बहुत फेमस स्पीच था माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का इन हार्वर्ड स्कूल, जहां पे उसने कहा कि आई सी वेरी डार्क फ्यूचर फॉर यू गाइस। क्यों? तो उसने अपना पूरा बता दिया, वैदिक ज्ञान सबसे अमीर आदमी। लेकिन फैक्चुअली इसमें ये जो मुझे लगा उसका पॉइंट में कंसिस्टेंसी नहीं था। डू दे हायर स्कूल ड्रॉप आउट्स? ये बात लीडर होगा स्कूल ड्रॉप आउट ही, लेकिन बाकी यही तो काम किया है पॉलिटिशियंस ने। अरे स्कूल ड्रॉप आउट यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है भाई, ये बात समझिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है और बाकी लोग नौकरी करते हैं। नौकरी करने के लिए तो आप फिट है। लीडर तो एक ही चाहिए, लेकिन लीडर कभी देश नहीं बना सकता, लेकिन जो उसके अनाम सभी लीडर चाहिए। सभी बिजनेस हाउस को एक लीडर चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हमने कहीं पढ़ाया ही नहीं। देखिए बात हमको समझ में नहीं आ रही है, कहीं हमने जो गांव का जो असली अर्थतंत्र है जिस पर चलता है, हमने कभी एक दुकान कैसे चलाया जाए किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हम एक कपड़ा का दुकान कैसे चलाएं या हम एक किराना का दुकान कैसे चलाएं, हमने पढ़ाया ही नहीं। कभी छोटा इंटरप्राइज हमने दिया नहीं। फैमिली बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए हमने पढ़ाया नहीं। बहुत ज्यादा पढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है कि ये चीजें अब लोग समझने लगे हैं कि फैमिली बिजनेस भी एक बिजनेस इम्पोर्टेंट ये है। मैं समझता हूँ सर, आज जब क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात कर रहे हैं और अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के एंगल से सभी चीजों को देखने की जरूरत है। पढ़ाई का ये तरीका क्रिएटिविटी और इनोवेशन को नहीं प्रमोट कर सकता है जो आज हम कर रहे हैं, ये बेरोजगारी को प्रमोट कर। आप सर बता रहे हैं शुरुआत से ही जो पहले हमारे यहाँ पहले बहुत थी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में, जैसा आपने कहा कि
हम 4th रैंक पे थे या हमारी फर्स्ट रैंक पर थे। 30, चीन और इंडिया यही तो करता ही था, बाकी हमारे पास यही था। मैं नक्शा नहीं लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। उस टाइम में हमारे यहाँ सिस्टम जो था वो बिल्कुल जो आज हम चाह रहे हैं वो सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास थी। हाँ। वही सिस्टम पे हम कर रहे थे। बीच में हम जो आए हैं, ये सिर्फ स्कूल सिस्टम आज भी हर गार्जियन की यही होती है कि मेरा बच्चा पढ़ के आईएएस बने, आईपीएस बने या फिर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, न कि बिजनेस करने या इनोवेशन करने या कुछ ये नया करेगा इसके लिए नहीं पढ़ाते, कोई भी नहीं। और बच्चा भी उसी में पढ़ रहा है। जो करने वाले वहां से अलग होते हैं, उनको मन नहीं लगता है, छोड़ो ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं ये समझ में आ रही, हमको तो ये करना है। या ड्राइवर ही बनना है तो उसको ड्राइवर में ही मन लगेगा, सही, बट वो ड्राइवर की स्कूल में उसको नहीं मिल रही है जगह। बिल्कुल सही। उसका तो है ही, बंदर भी वही पढ़ रहा है, मछली भी वही पढ़ रहा है, हाथी भी वही पढ़ रहा है कि स्कूल में सब पढ़ रहा है, तो गलत बात वो। और एक और बात मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, कभी कभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, आप लोग चाहते हैं कि ट्राइबल ट्राइबल मैं एक सिर्फ जानकारी दे दूं, मैं एक फूड का प्रमोटर हूं, वो है रैट, चूहे की फार्मिंग का मैं प्रमोटर हूँ। पूछिएगा क्यों, और जानना भी चाहिए लोगों को, बहुत लोगों को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। मेरे नाम से खोजिएगा रैट फार्मिंग करके विजय प्रकाश, तो आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएगा दुनिया। गाली देते हुए भी मुझको, और मैं इनको जिंदा जला देना चाहिए, इससे लेकर के मेरी संस्था में भी प्रशस्ति पत्र पढ़े गया हूँ। तो बात समझिए, बहुत वही लोग जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जो उनका स्किल था उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ आज के युग में, वो पिछड़ गए। अगर हम कॉमर्शलाइजेशन कर दें, कोई आदमी बंदर पकड़ रहा है, क्या बुराई है? बंदर का फार्म बनता है भाई। कोई आदमी भालू पकड़ता है, भालू का जू बना सकता है, क्या बुराई है? हमने क्या किया, एक कितनी गंभीर बात की, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोलूंगा आप लोग के समक्ष। एक एक्ट बनाया हम लोग, वो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट। उसमें क्या है मालूम है? सभी जानवरों को हमने बंद कर दिया कि आप भालू नचाना बंद, सांप पकड़ना बंद, जितने भी जानवर हैं सबका बिच्छू पकड़ना बंद। तो जितने लोगों की जीविका थी सब खत्म। और जितने लोगों का स्किल था, स्किल भी था, आपको हिम्मत है तो सांप पकड़ के दिखा दीजिए, हिम्मत है तो गला में लटका के दिखा दीजिए। और तो यहाँ पर समस्तीपुर में चले जाइए, वो लोग अभी जो नाग पंचमी के अवसर पर गला में सांस लेकर के हजारों आदमी चलता है, कहां से सांप भी लाता है पता नहीं, सभी के गले में लाता है। उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्यों? इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमने कानून बना के रोक दिया है, कॉमर्शलाइज नहीं करने दे रहे हैं। कॉमर्शलाइज करने दीजिए तो सांप का 20 करोड़ रुपए किलो बिकता है। बहुत अच्छा है, आपने भी सड़क पर चलते देखा होगा कि छोटी बच्ची होती है, रूप लगा होता है, नट एकदम अद्भुत है, अद्भुत। बहुत अच्छा स्किल है, बहुत हार्डफुल लर्न है। क्या उसके बाद हम उनको पैसे देते हैं? नहीं देना चाहिए भाई। ये हमारा सिस्टम जो देखिए, क्या फायदा है स्किल? वही वो जिम्नास्ट बन सकता है, वो जिम्नास्ट बन सकता है, तो हम लोग जिम्नास्ट के लिए उसको स्कूल में भर्ती कराइए। ये हमारा काम होना चाहिए। हम लोग तो उसको आज के, अरे सांप पकड़ने जाएगा तो आज हम कह देंगे सांप इस तरह से कटवा लो, या उसको सिरिंज से निकाल लो। अरे आज मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके, जो मोस्ट मॉडर्न आपको और मेहनत करने की जरूरत है कि ये जो जितने लोग इस तरह से गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनका ये स्किल मर जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको सांप पकड़ने वाला आदमी ना बचेगा, चूहा पकड़ने वाला, चूहा का सब कुछ होता है। चूहा का बनता आप देखिएगा फूड, मुसहर पूरी जाति इसी पर है, और मुसहरी जाति नहीं है, आप देखिएगा इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा सब जगह खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का फूड हैबिट्स डिफरेंट है, सांप भी खाते हैं। तो बुराई क्या है इसमें मुझे आज तक बुराई नहीं समझ में आई। इस जो आदमी जो खा सकता है, पचा सकता है, अगर उसको साइंटिफिकली परमिटेड है कि ये खा सके या पचा सके, तो हम लोग को उसको उगाने का अधिकार, उसको ग्रो करने का अधिकार होना चाहिए, और उसके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। उसी से बिजनेस निकलेगा, उसी से हजारों आदमी को बिजनेस निकलेगा। तो ये आप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। और मैं ये बता दूं कि जो कंट्री फूड के बारे में जितना टॉलरेंट रहता है, वो गरीबी को उतना अधिक हैंडल करता है, क्योंकि तब प्रोटीन चीप हो जाएगा, तब आपका फूड चीप हो जाएगा।
खाने दीजिए, जिसको जो खाना है खाओ खाओ भाई, क्या अंतर पड़ता है? आप मत खाइए, हेलो जो नहीं सर। खाएगा वो नहीं खाए, जो खाता है खाओ, प्रॉब्लम क्या हेलो है? सर। इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन तो डाइवर्सिफिकेशन को तो परमिट कीजिए ना, हेलो सर। तो और परमिट ही नहीं कीजिए, आप साइंटिफिकली सपोर्ट कीजिए उसको, साइंस सपोर्ट कीजिए। यहाँ तो मेरे खिलाफ नारा लगा दिया रोड पर कि मूस नहीं मौस चाहिए। मैंने कहा मौस भी चाहिए मूस को ही पालने के लिए, क्या बुराई है उसमें? कंप्यूटर लगाइए। अब देखिएगा, अद्भुत आपको नए नए, आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इसी से इनोवेशन निकलेगा। ये सारे जो लोग हैं, सभी जो स्किल्स, जो हजारों साल का उनका स्किल है, वो आपका सोर्स ऑफ इनोवेशन हो सकता है। ये मैं इसलिए आपको इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत समय में सर। मेरी जहाँ तक समझ है, जी। ऑक्यूपेशन जब कास्टिज्म के रूप में आ गया, वहीं से दिक्कत शुरू हुई। नहीं कोई कास्ट नहीं है, गलत से सब मिसकंसेप्शन है। मुझको ये बता दीजिए, मैं सिर्फ एक चीज से चैलेंज करता हूँ, बताता हूँ। वाल्मीकि का क्या था ये? नहीं मैं वही अब वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो आज तक पढ़ रहे हैं आप, को जब कहाँ top उनका level पे वोकेशन था? सब बदल दिया। बना दिया गया, हाँ? तब प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ, ये नहीं, ये हम लोग को बदलने की जरूरत है, हाँ, बदलिए। जो सर। लेकिन ये रेयर, दीज पीपल पर्टिकुलरली दी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या ऐसी कम्युनिटी है, इनको रेयर स्किल्स हैं, मैं इसको रेयर स्किल्स कहता हूँ। और ये रेयर स्किल्स का कमर्शलाइजेशन हम नहीं कर, ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भाई, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब सोचना चाहिए इंटरप्राइज के रूप में। चलिए ये जब आप जाति की बात करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लाइन है, कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कहने का तात्पर्य है वक्त बदल रहा है। जब आप आज की तारीख में जब आप शॉर्टलिस्टिंग करते हैं टैलेंट की, बिकॉज इट्स अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल, तो आप पूछते हैं डू यू नो यू हैव दिस कोडिंग स्किल्स, यू डोंट आस्क डू यू बिलोंग टू माय कास्ट और नॉट। हाँ तो exactly. स्टार्टअप कम्युनिटी में व्हेन यू हैव टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल, यू हैव टू फॉरगेट द वर्ड कास्ट और कास्टिसिज्म, तो उसको भूल जाइए। खाली स्किल बेस्ड सोसाइटी खोजिए, स्किल खोजिए, लोगों में स्किल देखिए, क्रिएटिविटी देखिए। क्रिएटिविटी बेस्ड समाज ही आज आपको नंबर 1 बना सकता है। इसलिए उधर ही लगिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट कीजिए। आज का संकल्प यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। Thank you, sir, for your valuable experience and knowledge. Moving forward, I would like to invite Mr. Sandeep Kumar, sir, to share his graceful thought with us. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं डीन हूँ राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप का, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों बातें की गई यहाँ पे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फाउंडेशन रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं 1 मिनट का आप लोग का टाइम लूंगा। मैं एक एक्सरसाइज जो अपने स्टूडेंट सबके साथ करता हूँ, तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू डू दैट। ओके, सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज and think about thing that is watching you breathe when your eyes are closed. आपके अंदर वो क्या है जो आप जब सांस ले रहे हैं उससे वो अवगत है। आपकी आंख बंद है फिर भी आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं अपने आप को सांस लेते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही है वो उसी चीज की अनुभूति और अन्वेषणा में हम सब समय दिया है। तो ये जो अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल की जो बात कर रहे हैं, उसका ऋग्वेद में उससे अच्छा तो कहीं एग्जॉर्टेशन कहीं है ही नहीं। वो क्या बोल रहा है कि मनुर्भव, उसका पूरा मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए इसको। ऋग्वेद के 10th मंडला में है मनुर्भव जन्या देव्यम जन्म काम करने जाओ ना यहाँ से। क्रिएट डिवाइन सोसाइटी। दिस इज लाइक ऋग्वेद इज एक्सॉर्टिंग अस लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। मतलब इससे अच्छा एक्सॉर्टेशन ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसका जो एक्सरसाइज है वो इसी छोटे एक्सरसाइज से शुरू होता है कि आप जब आंख बंद करके आप अपने आप को देख रहे हैं सांस लेते हुए, तो वो क्या चीज है आपके अंदर जो देख रहा है। तो दूसरा आपसे प्रश्न करता हूं, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो पिछले 100 साल में सबसे क्रिएटिव व्यक्ति कौन हुआ है भारत? आप नाम दे दीजिए, सबसे क्रिएटिव व्यक्ति कौन हुआ है? रामानुजन। रामानुजन बाय द टाइम
of 32 years of age, he had given 3,200 mathematical theorem. और उनसे जब पूछा जाता था ना कि आप मैथमेटिकल थ्योरम कैसे इतना लिख लेते हैं, तो उनका जवाब वो पता है क्या होता था? बोलते थे कि हमारी जो कुल देवी है वो हमारे जीव के ऊपर बैठकर हमें थ्योरम बताती है, और सुबह में उठ के मैं बस लिख लेता हूँ। तो उसका उसका जो जो उसका जिस्ट क्या है इस स्टोरी का, कि ये जो आपका खुद करने की जो ये कि मैं कर रहा हूं, इस भाव से आप हटिएगा तब ट्रू क्रिएटिविटी आपके बाहर आपसे निकलेगी। तो हमारे हमारे वेदों में क्या बोला जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। क्या मतलब है इसका? जब आप उस स्टेट में हैं, जब ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा निखरती है। और जिस समाज ने इन सब ज्ञानों को दिया है वहीं पे विस्मृत हो चुका है, हमें पता ही नहीं है। तो हमारा जो स्कूल है जिसका डीन हूं मैं, हम लोग इसी प्रयास में है कि इन सब चीजों को कैसे उठाया जाए फिर से, क्योंकि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, अभी जो अमेरिका चाइना ने जो पाथ लिए हैं क्रिएटिविटी के, दैट्स अनसस्टेनेबल। इंडिया कैन नॉट बेयर टू टेक दैट पाथ। So we have to be very, very creative in finding solution to our problem. तो मैं 2020 में एक लेक्चर दिया था, मैं बॉम्बे पुणे में एक कॉलेज है वहां पे। तो मैं ऐसे ही दिस इज एन स्पेकुलेशन कि हम अपने नाम के आगे श्री क्यों लगाते हैं। मेरा जो इंट्यूशन है तो सृजनात्मकता का द्योतक है वो, कि हर एक व्यक्ति जो है ना उसमें सृजन करने की इतनी क्षमता है कि आज हर व्यक्ति के पीछे आगे हम श्री लगाते हैं। तो वो जो सृजन करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो कैसे बाहर आएगी? आभा का आभा मतलब हेलो जो हमारे चारों तरफ आता है, लेकिन उसका सृजनात्मकता से भी उसका रिलेशनशिप है। तो इसका जो एक फॉर्मूला जो है ना, वो कौटिल्य ने दिया है, गजब का। जहां बिहार की धरती पे हम लोग बैठे हुए हैं कि ये जो हमारी जो क्षमता है उसको अनलॉक कैसे किया जाए, उसका जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लिया कौटिल्य ने लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को लिया और उसे सम्राट बना दिया। तो उसने ड्रॉप आउट, हाँ वो भी ड्रॉप आउट था। दूसरा आदमी जो है ये स्टीव जॉब्स, ठीक है। आई एम कनेक्टिंग मेनी डॉट्स बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय स्टीव जॉब्स ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट डॉट्स, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स के मरने के बाद उसने अपने विल में लिखा हुआ है कि एक पुस्तक सभी को देना है जो हमारे फ्यूनरल में आया है। वो कौन सी पुस्तक थी? I will give you 10,000 rupees right away if you give me the right answer. भगवद गीता। Autobiography You want 10,000? of Yogi. Yeah, it's autobiography of a yogi. You want that? I will give you 10,000. You know, so अब देखिए कि स्टीव जॉब्स ने उस किताब में क्या देखा, जिसके कारण कि स्टीव जॉब्स से बड़ा क्रिएटिव आदमी as far as market is concerned is not there. जो योगानंद यहाँ रांची में। ओ ये पता नहीं आपको, मतलब कि तो उस बुक में क्या है ऐसी जिसके कारण कि स्टीव जॉब्स ने बोला कि भाई आप मेरे मरने के बाद अगर एक किताब आपको पढ़ना है वो किताब पढ़िए आप। वो उसी प्रश्न के पीछे जाता है कि आप जब आंख बंद कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या है जो कि आपको सांस लेता हुआ देखता है, और वो जो है वही आप है। हाँ दैट बुक, या आप जो हैं वो वही हैं आप जो देख रहा है। तो उसको आदि शंकराचार्य ने कैसे कैसे उसे बांधा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ निर्वाण षटकम? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड निर्वाण षटकम? Yeah, so निर्वाण षटकम it's a 6 stanzas poem, you know. So क्या बोल रहे हैं हम? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवोहम शिवोहम शिवो, you know. तो वो आपके अंदर जो चीज देख रही है आपको जब आपका आंख बंद है, सी द कॉन्ट्रडिक्शन हियर, वो चीज जो देख रही है जब आपका आंख बंद है वही आपको पूर्ण चेतना। इसी बिहार में यशोपनिषद का जो शांति मंत्र है उसकी रचना की गई। क्या शांति मंत्र है वो? यशोपनिषद का शांति मंत्र, जीरो और इन्फिनिटी का फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ है उसमें। पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण लेके हटाइए, पूर्ण ही बना रहता है। ये सब जो हमारा जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कैसे करें, किस स्टेट में रहे जिससे दुनिया जैसी है वैसे ही दिखे, हमारे अहंकार से वो कलर नहीं हो, तब जाकर एक जो सृजनात्मकता का जो परिकाष्ठा है वो आप अचीव कर पाएंगे। और जो हमारे समाज में लोगों ने किया है, आदि शंकराचार्य, he died at the age of 32-33, उनसे बड़ा क्रिएटिव आदमी भी नहीं हुआ है अभी। रामानुजन को देख लिए, विनम्रता के एकदम वो उसके पराकाष्ठा को वो पकड़ लिए थे। और तो नाउ कमिंग बैक टू कौटिल्य, कौटिल्य ने क्या फॉर्मूला दिया था? लेट मी रीड, आई उस दिन पहले मैं लेक्चर दिया था उसमें क्या फॉर्मूला दिया है? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय। बिना इंद्रियों के कंट्रोल किए हुए अगर आप सोचिए क्रिएटिव सही मायने में बन जाइएगा तो नहीं बन पाइए। और वो कंट्रोल कहां से आता है? विनम्रता से आता है। विनम्रता कहां से आती है? जो इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, इन लोग जैसे लोगों के साथ बैठ कर आता है। ओल्डर लोग हैं जिन्होंने समय को देखा है, समय के पद चिन्ह को देखा है, उनके साथ आप बैठिएगा तो अपने ज्ञान का जो लिमिटेशन है ना वो पता चलेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट द फोर्थ पॉइंट। जब राजा वशिष्ठ राम को लेके गए अपने अपने आश्रम में, तो वो तो बैरागी हो रहे थे, 17-18 साल के थे कि हमको भाई ये राजपाट नहीं करना है। तो व्हाट डिड राजा वशिष्ठ, फर्स्ट थिंग राजा वशिष्ठ टोल्ड हिम, जब तक राम तुम्हें अपने अज्ञानता का एहसास नहीं होगा इस स्थिति से बाहर नहीं निकलोगे। अनलॉक जो पोटेंशियल है, आपको पोटेंशियल अनलॉक नहीं होने वाला है जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप कितना कम जानते हैं। अगर आप सबको मैं सूर्य के ऊपर बैठा दूं, पृथ्वी दिखेगा भी नहीं, और यहाँ बैठ के हम शेरशाह और हम ये हैं, हम वो है कर रहे हैं, नो, विच इज कंप्लीटली चेंजिंग द, लाइक डॉग्स चेंजिंग इट्स ओन टेल। आप सर्किल में घूम रहे हैं, उसमें आपका पोटेंशियल अनलॉक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, यू नो। तो ये जो विनम्रता है, तो हमारा जो राष्ट्र में स्कूल में हमने 2 शब्द के ऊपर सिर्फ काम करता है, विस्मय और विनम्रता। योग सूत्र, शिव सूत्र 11वीं सेंचुरी में लिखा गया, तो उसका 12वां श्लोक जो है वो क्या बोलता है? विस्मय योग भूमिका। जब तक आप विस्मित स्थिति में नहीं है इस दुनिया को लेकर, आप योग की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। अगर आप इस दुनिया को देखकर इस बात को अवाक नहीं है, ये कहां से आ रहा है, योग की स्थिति भूल जाइए। योग की स्थिति अगर आप में नहीं है तो फुल पोटेंशियल आप नहीं अपना आप अचीव कर सकते। सो विद दैट थॉट आई विल एंड माय। आप 10,000 रुपए आप जीत गए। Yeah, I will give it to you. Thank you, sir, for your knowledge and thought. Now, I would like to invite Professor Dr. Rana Singh, sir, to extend a vote of thanks. Thank you very much. I think it was a very enriching and enlightening session. Before I extend my sincere thanks, let me give you a $1 billion opportunity to all of you. The term unlocking human potential gives the emergence of a new domain called HR tech, which is a multi-billion industry. तो ये जो लाइन है, आप सब में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेशन रखते हैं, I will invite all of you to start thinking in the domain of HR tech. We have a lot of HRMS, human resource management systems. We call it HIMSS, human information management systems, HR systems, AI-enabled HRM, attendance management system, payroll management system, people management system, talent management system, performance appraisal management system. So this is a $1 billion industry for all of you. Those of you who do not see human as a $1 billion industry, this is to update and apprise all of you. HR tech is the domain. I have some people from AI background here. Mr. Soni is here. So he has been working in AI domain.
So a lot of work is going on in the HR tech as a domain. I have been evaluating a lot of young startups who come with their pitch deck, and yet to come across anybody who has pitched with a product or a service in the HR tech domain. So it's a multi-billion industry across the globe. So I would like to thank all of you with a note that it's $1 billion opportunity for all of you. We can start thinking on unlocking human potential can be $1 billion opportunity, not just in the country, beyond the country as well. On this note, I would like to place on record my deep sense of thanks and gratitude to Sri Vijay Prakash sir, who has been very kind and generous to spare his valuable moments with us and who shared the deep insights right from the annals of history when we started disrupting the world economy by discovering fire, discovering the wheel. He told that the best of the technology does not require that the brilliance can come only from IITs and IIMs. It can come from any part of the world. It can come from any one of our minds, and we can do wonders. So with this note, we thank you very much, sir, with a big round of applause. In fact, this is coming after years and years and decades of experience and exposure behind it. And I also thank him for giving Bihar and Patna one of the 10 Atal incubation centers. The other one was at Greater Noida. It was at BIMTech. I had the opportunity to witness it. It was set up in 10,000 square feet of one of the boys' hostel in the basement. And now it has become very, very big with a lot of startups incubated from there. I had the privilege of inviting Arvind Panagaria sir way back on July 11, 2011. We invited him to speak like this, to speak on imperatives of higher education in India in 2011. And little did he know then that in 2014 he will have the power of the whole economy to sign and plan for the whole economy. That was something very, very insightful. I also take this opportunity to thank Mr. Sanjeev Kumar, who's been the dean. Professor Sanjeev has been dean of Rashtrakuta School of Public Leadership at Rishiyud University, which is a young university. It was one of my ex-bosses was the founding vice chancellor. When I was vice chancellor of Sanskriti University, he had just joined as one of the founding vice chancellors. So I had the pleasure of interacting with him at multiple locations. And we are very thankful to you for your gracious presence here with us. And it is very, very insightful to understand that lot of the best learning lessons, which are currently not available in the most contemporary books and literature of management and startup entrepreneurship. We have some of the best learning lessons in Rig Veda and other Indian epics, Ramayana, Mahabharata. All that we need to do is to read it multiple times, understand Sanskrit, Hindi, English, and really understand how they give $1 billion and $1 million message so that we can start building on our million, billion, and trillion in our startup ecosystem. Thank you very much for a big round of applause. Last set of thanks to all of you who have been here with a lot of patience. I've been trying to, and let me place on record my deep sense of thanks and gratitude. So with their sincere efforts of this startup fraternity, Bihar has become ranked 9th in the country. So big round of applause for them. And last but not the least, sincere thanks to everyone who has been part and parcel of organizing this, the graphic designer who has made this marvelous design, all members of BHub, and people who we are not able to speak. A big thanks for all of them. Thank you very much. So let us part ways with a mission to take the state to newer heights, the country to newer heights, and the entire startup fraternity ecosystem to a level beyond the imagination of all others in the country. Thank you. Best of luck to all. Who can make the announcements? Yes. Yes. So please out me there. Just a minute. My camera guy is going to sir something. Yes. Thank you. Thank you.
Vice Chancellor of Sanskriti University. My ex-boss, he was Vice Chancellor of, founder Vice Chancellor of Asia. Now he's in US. Thank you, sir. Before coming to Bihar, I was working very closely. We worked very strongly on START in UP and we took it to New. We did, yeah, we did more than 200 incubators across the state. Yeah, we need to do same in. We are following the same paths, rather better than and brighter than. So big round of applause. One side. आज इस नाम पे $1 billion अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. HR टेक सुन लिया आपने? थोड़ा इस पे स्टडी कीजिएगा और जो आज मैं बिलियन बना रहा हूँ मुझे अच्छा लगेगा आप में से कोई आके वापस कहे सर उस दिन मैंने एक सेशन अटेंड किया था आई एम द फर्स्ट वन इन द रेस ऑफ बिकमिंग the first millionaire, if not a billionaire. And once you are a millionaire, automatically the next step is to become a billionaire. So best of luck to all. Thank you. I will pass on his 10,000 through you. No, directly, please. I don't want to be the interface now. Because it's CIMT. Prime Minister says DBT, direct benefit transfer. And I respect his wish. You can give your mobile number, he'll transfer directly. Now, not. Because he may think I have taken and not given in case if there is a lapse. He can share it. Let me do it right away. No. I will just take like a few seconds. Then we'll from next time onwards, we'll make this a prize announcement as well, so that people will have more motivation to come and. Yeah, I asked that at Rishi, but a few other places, no one was able to answer. And that's why you have increased the. थोड़ा इस पर चुप रह जाते तो अगली बार और ज्यादा हो In fact, I am one person who is always reading every day, trying a new book. Today has been Astang Hridayam, a new book on how Ayurveda is helping or healing mind, body, and soul. Yes. Today I got this book. So every day I explore one new book. So I wanted to remain, at the back foot today. Good, congratulations. भट्ट एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके You owe half of it, huh? बहुत बड़ा सोर्स 50% for remaining silent. That's on the lighter side. Let's listen. Thank you, sir. नहीं ठीक है ये बातें कुछ कहने के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं ठीक नहीं. otherwise 30% will go in tax. Please understand. सरकार के पास जाए प्लीज चला जाएगा The moment you transfer 30% सरकार के पास, he will be the loser.